Hello students, before starting this video, let's take a quick review. As we study earlier, we discussed the topic of components, meaning of investment and component of investment. So investment we discuss, we have done fixed investment, inventory investment along with importance. So now there is a next concept is gross investment and net investment. Before starting this concept, as you know, producer maintains certain level of a stock, that is called inventory stock we are talking about. So there is two concept: planned inventory stock, unplanned inventory stock. Planned inventory stock refers to desired inventory stock, which have to be maintained by the producer for meet out the potential demand, या to exploit the potential demand in the market. ओके जैसे हम आने वाली फ्यूचर के बारे में सोच के चल रहे हैं, अभी हम सेविंग कर रहे हैं, तो आने वाली फ्यूचर में कुछ भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो दैट्स द मीन ऑफ टू मेक अ प्लान. दैट इज़ द मीन ऑफ to make a plan for to meet out the uncertainties here. From the point of view of producer, planned inventory stock here, it means you can say maintain certain level of inventory stock maintained by the producer in order to exploiting the demand of their product. So it helps to be smooth flow of functioning in the organization also, and to avoid the unnecessary risk outside the market prevailing in the market. Okay, so now come to the next one, unplanned inventory stock. Unplanned inventory stock here, it means there is no plan, there is no undesired, you can say undesired inventory stock. Okay, so you can say unplanned inventory stock arises due to the demand for the product turns out to be lower than the expected one. जैसे कि हम बात करें अनप्लैंड का, हियर इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे आपने कोई प्लान नहीं किया था और आपको क्या हो गया, लॉस हो गया. तो अनप्लैंड इन्वेंट्री स्टॉक हमेशा क्या करता है, आपको लीड्स करता है, क्या करता है, लॉसेस लीड्स करता है, मतलब क्रिएट करता है, जनरेट करता है. सो हियर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड दैट द डिमांड विल फॉल डाउन ऑफ देयर प्रोडक्ट. सो दैट इज़ कॉल्ड अनप्लैंड इन्वेंट्री स्टॉक. आपने प्लान तो किया था कि एक्सपेक्टेड आपकी डिमांड इतनी रहेगी मार्केट में प्रोडक्ट की, मगर फिर क्या हुआ, उसकी डिमांड गिर गई, तो आपका इन्वेंट्री बचा रह गया. या फिर आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपने ये सोच के नहीं चला कि आने वाले समय में एक्सपेक्टेड प्राइस जो रॉ मटेरियल है उसके बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पर आपने नेसेसरी लेवल जो इन्वेंट्री स्टॉक का होना चाहिए आपके गोडाउन में और आपके वेयर हाउस में, वो आपने मेंटेन नहीं किया, तो दैट इज़ कॉल्ड अनप्लान इन्वेंट्री स्टॉक. सो there is a simple concept. Now come to the next one, gross investment and net investment. As you know the investment, what is the meaning of investment? Increasing change in stock of capital, that is called investment. Okay, so there is a two concept, gross and the net. When we talk about the gross means addition. When a producer make an investment, make a expenditure on both fixed asset, investment on fixed assets and current asset, that is called inventory stock. Inventory, that is called stock, that is called gross. Okay, the expenditure on the purchase of fixed asset as well as the expenditure on the inventory stock during a year is called gross investment. Okay, expenditure on the purchase of fixed assets as well as expenditure on the inventory stock during the year, it's called gross investment. यही आपका क्या बनता है, फॉर्मूला भी बनता है. सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट
का जो फॉर्मूला है आपका, आप ये भी बोल सकते हैं ग्रॉस हेयर इट मीन्स एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। एडिशन टू द मीन्स जो भी आप एडिशन कर रहे हैं किसमें, कैपिटल में। अब हेयर इट मीन्स कैपिटल में क्या क्या हो सकते हैं आइटम्स, जैसे कि प्रोड्यूसर मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑन द बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, एडिशन इन द इन्वेंट्री, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सो दीज आर द काइंड ऑफ इट। ओके, तो वट एवर द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर द डेप्रिसिएशन, मतलब कि हमने उसमें डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया है, ठीक है। सम हाउ whenever you are making an investment on the machine and during the production process, आपने कुछ ना कुछ, आपने क्या होता है उस मशीन को खरीद के कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आपने क्या कर लिया, उसको यूज़ कर लिया। जब आपने यूज़ कर लिया तो वो लीड क्या करता है, आपका डेप्रिसिएशन करता है। तो दैट अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस, देन यू विल गेट दी नेट। हम क्या निकल के आता है, वो नेट निकल के आता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यू कैन ऑल्सो सेट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर द डेप्रिसिएशन। ओके, सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यू कैन ऑल्सो सेट, यहाँ पर आप बोल सकते हैं और करके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द expenditure on purchase of fixed assets and unsold stock। unsold stock here it means जो closing stock, आपका जो बेचने वाले का जो बेचना बकाया रह गया, मतलब कि which is remain for sold। okay, that stock will be added। It is a part of the inventory stock which is purchased by themselves by the producer। okay, so that is called expenditure। The gross investment is the expenditure on the purchase of fixed asset। जो भी आप खर्चा कर रहे हैं फिक्स एसेट में, और जो भी बच गया है आपका स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंटरी स्टॉक वी कैन से। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इट्स कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम उसके बारे में बोल रहे हैं। Students, there is a note. The note is only net investment cause the net addition to the stock of capital। You must keep in your mind, हमारा जो net investment है वही हमारा क्या करता है, net addition करता है किसमें, stock of capital में। We have to be deducted the depreciation from the gross। So depreciation is a part of the gross investment and it just help to maintain the existing stock of capital। okay, so depreciation is a part of gross investment and which replace the worn out asset and it helps to maintain the existing stock of capital। तो जब आप नेशनल इनकम के क्वेश्चंस करेंगे तो यू मस्ट कीप इन योर माइंड, ग्रॉस में से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, देन यू विल गेट दी नेट। ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, that is importance of investment। what is the role of investment in our life, in the economy? So let's begin। the first one is investment help to raise the stock of capital in the economy। higher stock of capital, चाहे वो फिक्स एसेट के फॉर्म में हो, it leads to increase availability of capital per unit of labor which improve the efficiency of labor। ओके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास स्टॉक ऑफ कैपिटल होगा उतना ही क्या होगा, पर लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर होगा, एंड उससे अल्टीमेटली क्या होगा, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस लेवल ऑफ लेबर। ओके, द नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन, इट हेल्प्स टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जितना ज़्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि जितना इन्वेस्टमेंट आप करोगे उतना ही आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी और उससे क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ भी होगा। सो हेयर इट हेल्प टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्सो जीडीपी ग्रोथ। नेट इन्वेस्टमेंट हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ये आपका क्या करता है, इंपॉर्टेंस रखता है। तो समय के साथ इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ता है, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ भी होती है, हमारी इनकम भी बढ़ती है, उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो सरकार के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो यही होता है, टू मेक एन इन्वेस्टमेंट मोर एंड मोर इन द इकोनॉमी विच हेल्प टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, रेज द मोर टू इम्प्रूव द
living standard of the people, and also ultimately the goal to achieve the GDP growth. So these are the importance of investment. Now come to the next one, the concept of depreciation. As you all know, depreciation होता क्या है? Depreciation is nothing, it refers to the continuously fall in the value of fixed asset. उसकी वैल्यू जो है फिक्स एसेट की कंटिन्यूसली गिर रही है, कंटिन्यूसली रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू द नॉर्मल वेयर एंड टियर, ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम, आउटडेटेड हो जाना, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो जाना, चेंज इन टेक्नोलॉजी कह देना, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाना. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इट इज ऑल्सो नोन एज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल. उसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं. तो फिक्स एसेट जो है आपकी, जैसे प्लांट, मशीनरी, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं विच कैन बी रिमेन विद अस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वी कैन यूज अगेन एंड अगेन. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट हैज़ बीन गो डाउन. ठीक है, क्यों चलिए उसकी वैल्यू गिरती है? क्योंकि हम उसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ उसका नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, टूट फूट रहा है. तो ये इसके कारण उसकी वैल्यू क्या हो रही है? एक्चुअल वैल्यू जो रियल वैल्यू है उससे कम हो जा रही, गिर जा रही है. और समय के साथ आपको पता है कि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती है. जैसे आपने देखा होगा पहले टीवी आते थे, डेस्कटॉप वाले टीवी आते थे, अब उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है ना. इसी तरह से एलसीडी है, एलईडी है, एलसीडी की वैल्यू कुछ नहीं है, एलईडी की वैल्यू अब कुछ नहीं है. अब आगे और नई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो इनकी वैल्यू नहीं होगी. इसी तरह से मोबाइल फ़ोन्स के आप देख सकते हो कि पैड वाले मोबाइल्स हैं, उनकी वैल्यू अब आजकल कुछ नहीं है, बहुत कम हो गई है. तो एक समय में उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होया करती थी. सो द डेप्रिसिएशन इज़ द लॉस, ओके, in the value of fixed asset due to continuous usage and the passage of time. ठीक है, एक्सपेक्टेड लॉस इन ऑब्सोलेंस भी बोल सकते हैं आप, उसके वजह से भी होता है. तो डेप्रिसिएशन इट इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड कैपिटल. सो हियर डेप्रिसिएशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर रियल लाइफ, because in the absence of depreciation the value of fixed asset remain the same, and due to this no one make expenditure on the purchase of new assets, and the value because of the value of fixed asset remain the same, है ना. कोई भी पैसा खर्च करना नहीं चाहेगा और उसकी वैल्यू जो है फिक्स एसेट की सेम रहती. तो ये जो कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ाने के लिए इनकरेज करती है. टेक्नोलॉजी हमारी आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है. अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती. तो सो द फिक्स एसेट नीड टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. इससे क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बढ़ता है. अब डेप्रिसिएशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एज यू नो, इट्स वेरी सिंपल. जैसे हम आपको बता दें, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट या अमाउंट ऑफ मशीन या अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट लिख लो, माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो भी उसकी कबाड़ की वैल्यू है, जो भी उसकी एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी उसकी रह गई है. जैसे 5 साल की कोई मशीन और 5 साल बाद उसकी मशीन की वैल्यू कितनी है, 10,000 रह गई है, तो वो आप उससे माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर, नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर, या आप कह सकते हो लाइफ ऑफ द मशीन. फॉर एग्जाम्पल, if the machine costing rupees 1 lakh and at the end of 5 year its scrap value of rupees 20,000. ओके, तो आप कैसे निकालोगे? 1 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 5. तो यहाँ हो गए आपके कितने?
80,000 डिवाइडेड बाय 5, तो आप कर लोगे इसको डिवाइड तो कितना आ जाएगा आपका 16,000 इज दी वैल्यू पर ईयर आपका डेप्रिसिएशन मशीन का गिर रहा है। इट इज़ दी वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएशन। ओके, तो आप क्या कर रहे हो, कॉस्टिंग कर रहे हो, 1 लाख की मशीन एट द एंड ऑफ दी एवरी ईयर 16,000 की वैल्यू उसकी गिर जा रही है बिकॉज ऑफ यूसेज, कंटिन्यूसली यूसेज एंड दी टेक्नोलॉजी हैज़ बीन चेंज with the passage of time. Okay, so this is the concept of depreciation. Now there is a concept, there is a little bit difference between depreciation and capital loss. What is the difference between these two terms? It is very important and you must clarify the meaning of both the term. What is capital loss and what is the depreciation? Here depreciation, as you know, fall in the value of fixed asset due to normal wear and tear and obsolescence, but the capital loss refers to the loss in the value of fixed asset due to unexpected uncertainties. Unexpected certainties here it means जैसे आपका मैंने कहा नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, एक्सीडेंट हो गए, जो एक ही बार होता है, विच अकर ओनली वन टाइम, that is the loss. But the depreciation continuously, it is a process, the process of reducing the value of fixed asset. ओके, हम जो प्रोसेस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोविजन होता है जो हम एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी वैल्यू मशीन की निकालते हैं कि अब कितनी रह गई है, क्योंकि हम अकाउंट्स में जो हम मशीन खरीदते हैं एज पर दी कॉस्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो वो हमारी बुक वैल्यू में एज इट इज़ लिखी जाती है, वो समय के साथ हम उसको चेंज नहीं करते हैं. सो देयर इज़ अ नीड टू बी, इफ़ द कंपनी वांट टू नो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मशीन at present, so whatever the value of the machine at the time of purchasing, deducting the depreciation amount, किसके साथ जितने साल आपने उसकी यूज़ करी होगी, जो डेप्रिसिएशन उसकी घटा होगा सिस्टमेटिकली वो आप रिड्यूस कर दोगे तो आपको एक्चुअल कीमत उसकी पता चल जाएगी. तो यहाँ पर कैपिटल लॉस क्या होता है? कैपिटल लॉस का मतलब यहाँ पर हुआ कि जो आपका अनसर्टेनिटी की वजह से होते हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज और एक्सीडेंट की वजह से. दूसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं, डिफरेंस कह सकते हैं, इट डज नॉट हैम्पर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. डेप्रिसिएशन कोई हैम्पर नहीं करता है, मगर एक्सीडेंट के होने से आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में हैम्पर ज़रूर होता है. द थर्ड वन इज देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट. यहाँ पर क्या है, कंपनी का अपना प्रोविजन होता है 5% 10% का डेप्रिसिएशन अमाउंट करना. और जो उसका कैपिटल लॉस का जो डिफरेंस है, आप कह सकते हो देयर इज़ नो सच एनी सच प्रोविजन ऑफ द कैपिटल लॉस. बट एज वी हियर वी नीड टू नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन इन अवर लाइफ. इन द रियल लाइफ में अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन, हम एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, कंपनी अपनी एक्सपेंडिचर दिखाती है, लॉस दिखाती है, बट एक्चुअली में रियल लाइफ में डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो आपका डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज कर रहे हैं अमाउंट, वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में जाता है. और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में जब जाता है तो वो अमाउंट हर साल आप उसको क्या कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं. रिजर्व फॉर दी एट द टाइम व्हेन यू आर डिसाइडेड टू रिप्लेस दी न्यू वन. ओके, जो वन आउट आपके एसेट हो जाती है उसको आप क्या करते हो, न्यू वन में आप रिप्लेस कर देते हो. किसके साथ? जो भी आपने चार्ज किया होता है. तो कंपनी डेप्रिसिएशन इसलिए भी लगाती है क्योंकि अगर प्रॉफिट लेवल आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कंपनी का इनकम टैक्स ज़्यादा जाएगा और आपके शेयर होल्डर्स जो हैं उनको आपको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ जाएगा डिविडेंड. तो इसीलिए आपको प्रॉफिट अपना कम दिखाना पड़ता है और डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है. तो ये बहुत सारे इसके रीज़न हैं डेप्रिसिएशन का जो रोल है. मगर रियल लाइफ में ये क्या होता है, कंपनी के लिए फ़ायदा होता है, बट कंपनी पेपर वर्क में, डॉक्यूमेंट में इसको एक्सपेंडिचर और लॉस दिखाती है. ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए. इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ अनदर कॉन्सेप्ट्स हम बताएंगे.